Okay, so we'll start our today's lecture. But before that, I quickly revise this last part. Okay, I hope the screen is visible to everyone. So in last lecture, we already defined the random experiment. Okay, a random experiment means what? The outcomes are uncertain. Okay, for example, tossing a coin. And in that case, your outcomes are totally uncertain. You may get head, you may get tail like this. Then next is sample space. The set of all possible outcomes of that experiment is called as sample space, and the subset of that sample space is called as event. Okay, then next is complementary event. Okay, so these small topics are very important as far as some theory examples are concerned on this probability. So later on you will understand the importance of complementary function. Similarly, importance of mutually exclusive event and so on. Next is mutually exclusive events. It means what? There is no common points between these two events. Then those two events are called as mutually exclusive events. Exhaustive events are means what? Okay, their union must be the first of all it is mutually exclusive and such that their union is the whole sample space. But generally we need this mutually exclusive events and this complementary event as far as some theory examples are concerned. Next is independent events. Okay, independent means what? The occurrence of first event is not affected by the occurrence of other. Then in that case those two events are called as independent event. So later on or in today's lecture we will understand the difference between dependent and independent event. Okay. Okay, for example, tossing a coin is independent event, and if you want to draw say two kings from say 50 from those deck of cards, so in that case that event become dependent, है ना. ये आपको बाद में समझ में आ गया. अभी आज के लेक्चर में ये पार्ट है. Then also we have completed this example 1 and example 2. Okay, so this example 2, okay, find the probability of drawing a king. So यहाँ पे एक ही king आपको निकालना है. Therefore this is तो यहाँ पे dependent independent का part ही नहीं आ रहा है. But if you want to draw the two king, okay, from a well shuffled pack of cards, okay, in that case that event become dependent event, क्योंकि जब आप first king draw करते हो, है ना, उस टाइम पे probability आपकी आती है 4/52. बट जब आपको second king draw करना है ना, तो ऑलरेडी आपने एक king draw किया था. Okay, because of that you will have only 3 choices for the king, therefore 3 divided by, and now the total number of cards are 51. Okay, so like this the probability changes at every stage, therefore this event become the dependent event. Okay, and we are here now. Okay, so our next question is a throw is made with 2 dice. Okay, so here you have to throw 2 dice together, and we have to find the probability of getting score of 10 points, and find the probability to get 10 points, find the probability to get at least 10 points, and find the probability to get at most 10 points, है ना. तो ये सिंपल वर्ड्स आते हैं इसमें. एटलीस्ट, एट मोस्ट, इनका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए. एटलीस्ट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, है ना. तो एटलीस्ट 10 पॉइंट्स मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 पॉइंट्स. एट मोस्ट 10 मीन्स व्हाट? लेस इक्वल 10. ठीक है, सो रिमेंबर दिस वर्ड्स. इससे ही आपको आगे सारे कैलकुलेशंस करने. ओके, नाउ सो फर्स्ट वी विल सी द सैंपल स्पेस ऑफ दिस 2 डाइस, है ना. इफ यू थ्रो 2 डाइस टुगेदर, है ना, डाइस मीन्स लाइक दिस. ओके, सो 1 2 3 4 5 एंड बैक साइड पे 6. सो सच this is your given dice है. So here you have to throw this 2 dice together, है ना. So your outcomes are like this. Okay, for example first dice पे अगर कोई पॉइंट A आ रहा है और सेकंड डाइस पे आपका पॉइंट से B आ रहा है. ओके, क्योंकि आपको सारे पॉसिबल आउटकम कैलकुलेट करने हैं. सो कंसिडर a random outcome. So on first dice suppose your point is say, yeah, suppose your value is say A, and on second dice your value is say B. Okay, now from this we will find all the possible outcomes of the given experiment. Okay, but आपको पता है कि okay, so this A actually, this A are what? The values on the dice. Okay, but dice takes values like say 1 2 3 4 5 and 6. So total there are 6 choices for A. So total there are 6 choices for A, and similarly total there are 6 choices for B. A के लिए 6 choices है, B के लिए भी 6 choices है. So total number of outcomes are 36. Okay, so here in solution first I will consider all those outcomes, है ना. ये सारे outcomes आप consider करो. Okay, इनको
कैसे लिखना है, किस सीक्वेंस में लिखना है, आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, है ना। सो फर्स्ट रो में मैंने फर्स्ट डाइस की वैल्यू फिक्स की है 1 1 1 एंड आई जस्ट वैरी द वैल्यू ऑफ सेकंड डाइस. In second row I just fix the value of first dice which is 2 and I just vary the value of second dice and so on. So from this sequence you can write all the possible outcomes of a dice of 2 dice, okay, through simultaneously. Okay, so number of outcomes in the sample space are 36. Now we'll go one by one. Okay, so आपका पहला क्वेश्चन क्या है? So here we have to find a probability of getting score 10 points. So from this 36 outcomes, just calculate the outcomes whose score is 10, है ना. So score 10 आपको चाहिए, ऐसे outcomes आपको यहाँ पे निकालने. तो अगर मैं फोर्थ रो में देखता हूँ, 4 + 1 5 होता है, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 4 8, but here if I consider 4 6, है ना, so this outcome has the value 10 points. Again if I consider here 6 4, this is also one of the outcome whose value is 10 points. अगर मैं फिफ्थ रो में भी देखता हूँ, so 5 + 5 become 10 points. So these are the only 3 possibilities where your score is 10, है ना. तो आपका पहला इवेंट क्या है? ओके, अभी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको इवेंट पहले डिफाइन करना होगा. सो इवेंट क्या है? इवेंट जो दिया वही आपको कंसिडर करना है. सो गेटिंग अ स्कोर ऑफ 10. So this is my first event. So getting a score of 10 points, and in that the only possibilities are 4,6, 5,5 and 6,4. So the number of elements in that event are 3. Therefore your probability of getting the score 10 is the number of elements in event upon number of elements in sample space, that is 3 by 6, 3 by 36, and that value is 1 by 12. Okay, so this is all about the first question. Okay, now come to second question. Okay, second में क्या है? Okay, पहले यहाँ पे रीड करता हूँ. Getting a score of at least 10 points. चलो, so here I define an event A2, okay, which is getting at least 10 points, है ना. at least 10 points मतलब स्कोर आपको क्या चाहिए? स्कोर आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 10. सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 कौन कौन से पॉसिबल स्कोर कौन कौन से पॉसिबल स्कोर अब क्या आने वाले हैं? फर्स्ट इज 10, सेकंड इज 11 एंड थर्ड इज 12. 12 के आगे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम जो स्कोर होता है वो क्या होता है? 12 होता है. जो मिनिमम स्कोर आता है वो क्या होता है? आपका 2 होता है. बिकॉज 1 1 अगर दोनों डाइस पे आता है, इन दैट केस यू विल गेट योर स्कोर एज 2. अगर दोनों डाइस पे 6 6 आता है, इन दैट केस योर स्कोर बिकम 12, है ना. तो आपको कौन से केस में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है? सो फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ओके, वेर यू गेट एटलीस्ट 10 पॉइंट्स. एटलीस्ट 10 पॉइंट्स मतलब 10 से ज़्यादा आपका स्कोर चाहिए. सो इन दैट केस द पॉसिबिलिटीज आर स्कोर getting 10 score, next is getting 11 score and getting 12 score. ओके, तो इन सारे केसेस में आपको A2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ओके, तो आप पहला नंबर देखो. ओके, तो 10 की पॉसिबिलिटी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, 4 6 5 5 एंड 6 4, है ना. तो दिस इज द पॉसिबिलिटी फॉर गेटिंग स्कोर 10, है ना. तो ये कहाँ से आ रहा है? आपको ये प्रीवियस सैम्पल स्पेस से कलेक्ट करना है. नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? आई जस्ट वांट द आउटकम्स वेयर माय एडिशन, वेयर माय स्कोर इज 11, है ना. सो उसमें चॉइसेस क्या? 5 + 6 बिकम 11, तो ये एक चॉइस होगी. 6 and 5 इज ऑल्सो 11, सो ये एक आपके अनदर चॉइस होगी. नाउ देर आर नो अदर आउटकम्स वेयर योर स्कोर इज 11, सो देर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज फॉर गेटिंग 11 स्कोर. सो दिस इज फॉर गेटिंग 11 स्कोर and this is for getting 10 score. And now the last choice. Okay, so for to get this score 12, you have only one choice, that is 6 into 6. Okay, so here I collect all those possibilities where you get a score as 10, 11 and 12. And now just calculate the number of elements this event, that is A2, and the number of elements in this events are 6. Therefore your probability of getting at least 10 points is 6/36, that is 1 by 6. जो आपका थर्ड क्वेश्चन था, ओके, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए? वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कोर एट मोस्ट 10, है ना. अभी यहाँ पे देखो, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट का रोल आपको अभी समझ में आ जाएगा. ओके, तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करने से अच्छा कि आप उसका कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करो. आपको कॉम्प्लीमेंट से एक्चुअली उसका आंसर समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो हियर तो यहाँ पे ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोच. यहाँ पे उन्होंने आई थिंक डायरेक्टली सॉल्व किया. सो A3 इज वॉट इवेंट ऑफ गेटिंग स्कोर एट मोस्ट 10 पॉइंट्स. एट मोस्ट 10 पॉइंट्स मतलब लेस इक्वल 10. तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे? सो स्कोर 2, स्कोर 3, स्कोर 4, स्कोर 5, स्कोर 6, स्कोर 7, स्कोर 8, स्कोर 9
and score 10, है ना. So just find the probability or just find all the outcomes whose score is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना. तो ये काउंट अभी ज़्यादा ही होगा. दैट काउंट इज 33. So total there are 33 outcomes, okay, whose score is lies between 2 to 10. So total there are 33 outcomes whose score is lies between 2 to 10. ठीक है. तो ये आपको प्रीवियस टेबल से भी इजीली समझ में आएगा. यहाँ से बस ऐसे आउटकम कैलकुलेट करो जिनका स्कोर ओके 2 to 10 में आ रहा है. तो ये आपको समझ में आएगा. 1 + 1 2 कंसिडर करना है, 1 2 3 कंसिडर करना है, 1 3 कंसिडर करना है, 1 4 कंसिडर करना है, 1 5 कंसिडर करना है, 1 6 कंसिडर करना है. काउंट लाइक दिस, है ना. एंड योर काउंट इज 33 एंड देन योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 10 पॉइंट्स इज 33 अपॉन 36. ठीक है. तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, जस्ट कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस और फिर 1 माइनस करके भी आपको ये आंसर आ जाएगा. तो अभी के लिए मैं वो कंसिडर नहीं करता. ओके, जैसे सोल्यूशन है उस हिसाब से हम जाते हैं, क्योंकि लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड दी डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट फंक्शन. ओके, सो जिनको, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपने ऑलरेडी 11th 12th में भी लर्न किया है, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट यूजिंग कॉम्प्लीमेंट, तो वहाँ से भी ये हो जाएगा या डायरेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक टेबल कंसिडर किया. तो जो अप्रोच आपको सिंपल लगता है उस अप्रोच से आप कैलकुलेट करो. ऑलरेडी आपके पास सारे आउटकम्स है, तो अगर सारे आउटकम्स आप कंसिडर करते हो तो किसी भी वे से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो. सो आई विल नॉट मेक एनी कंफ्यूजन ऑन दिस. ओके, सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन एंड नाउ विल टेक द एग्जाम्पल नंबर 4. सो हियर अबाउट सो क्वेश्चन इज लाइक दिस. 3 फेयर कॉइन्स. फेयर कॉइन्स का मीनिंग क्या होता है? ऐसा मतलब जब भी आप कॉइन को टॉस करोगे ना, आइदर यू विल गेट हेड और आइदर यू विल गेट टेल. तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो कॉइन आपका वर्टिकल ही रहा है, मतलब यू विल नॉट गेट आइदर हेड और टेल ऑल्सो. तो हियर वी कंसीडर अ फेयर कॉइन्स. सो 3 फेयर कॉइन्स, है ना, आर टॉस. तो एक ही टाइम पे आपको हियर एट वन टाइम यू हैव टू टॉस द 3 कॉइन्स टुगेदर, है ना. देन and in that case find the probability of at least 2 heads. at least 2 का मीनिंग क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. बट अगर आप तो यहाँ पे टोटल कॉइन्स कितने हैं आपके पास? 3 कॉइन्स है. तीनों कॉइन्स को अगर आप टॉस करते हो तो मैक्सिमम हेड आने के चांसेस क्या है? ओके, 3, है ना. मैक्सिमम मतलब अगर तीनों कॉइन पे अगर आपको हेड हेड मिलता है, ओके, तो मैक्सिमम हेड आने के चांसेस क्या है? 3. और आपको क्या चाहिए? फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड. मतलब 2 हेड आते तो भी कंसिडर करना है. नेक्स्ट क्या है? 3 हेड आते तो भी कंसिडर करना है. 3 के आगे जाइए, मतलब 4 हेड कभी आने नहीं वाले, बिकॉज वी हैव ओनली 3 कॉइन्स, है ना. इसलिए ये ऑप्शन आपका स्किप होगा. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड. दैट इज नथिंग बट एटलीस्ट 2 हेड्स. ओके, हाँ, तो पहले हम आउटकम्स डिस्कस करते हैं, है ना. एक ही कॉइन को आपको सॉरी हियर एट वन स्टेज यू हैव टू टॉस दिस 3 कॉइन्स, ना. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, है ना. फर्स्ट पॉसिबिलिटीज तीनों हेड हेड आ सकते हैं, या लाइक दिस HTT. एंड इफ यू कलेक्ट ऑल दिस थिंग्स, ओके, तो ये आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस से लिखना होगा, तब जाके ये सारे कलेक्ट हो जाएंगे. सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज ऑल 3 आर हेड, है ना. नेक्स्ट इज बस एक H को मैं T से रिप्लेस करता हूँ. 2 हेड, सेकंड इज टेल. नेक्स्ट इज 1 टेल, अदर आर हेड, बट एट मिडल एट सेकंड, इन सेकंड कॉइन यू विल गेट टेल, इन फर्स्ट कॉइन यू विल गेट टेल. तो अब देखो यहाँ पे मतलब ये सीक्वेंस में लिखो, तब जाके सारे कलेक्ट हो जाएंगे. अदरवाइज मतलब एक आउटकम आपका मिस हो सकता है. अगर आपका एक काउंट भी रॉन्ग आता है तो भी पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस कैसे लिखा आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ. सो इन फर्स्ट स्टेज आई जस्ट कंसिडर ऑल 3 हेड. ओके, फिर इन तीनों केस में मैंने बस एक टेल को ऐड किया. ओके, और आपको एक टेल को ऐड करने के लिए भी आओ 3 चॉइसेस. फर्स्ट पे टेल कंसिडर करो, सेकंड पे टेल या थर्ड पे टेल. फिर उसके बाद मैंने 2 टेल, हियर आई कंसिडर 2 टेल टुगेदर. ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 चॉइसेस, टोटल देयर आर 3 चॉइसेस. ओके, एट फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस, एट सेकंड एंड थर्ड प्लेस, एंड एट फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस. तो ये आपको समझ में आ जाएगा. इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. एंड ऑब्वियसली लास्ट चॉइस आपकी क्या होगी? कंसिडर 3 टेल. तो ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी सीक्वेंस से आप कंसिडर करो, अदरवाइज यू विल मिस वन ऑफ द आउटकम, है ना. सो ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस क्या होगी? हियर आई स्टार्ट कंसिडर फ्रॉम 0 टेल. तो ये आपकी चॉइस है. आप 0 मतलब ये सारा मैंने टेल के लिए बोला है. 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल एंड 3 टेल. आप एक तो ऐसे कलेक्ट करो, या यू कैन कंसिडर 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड. बस रिवर्स से होगा. रिवर्स से आते तो 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड एंड 3 हेड. तो जब भी आपको
जब भी आप कॉइन को टॉस करते हो और जो आउटकम्स आपको मेंशन करने ये जनरली आपको इस पैटर्न से ही लिखने है ना। जब भी आप पहला आउटकम लिखते हो तो उसमें ऐसे आउटकम्स कंसिडर करो जिसमें 0 टेल आ रहा है फॉर एग्जांपल। सेकंड आउटकम आपको ऐसे कंसिडर करें जिसमें 1 एक ही टेल आ रहा है ना, और सेकंड में 2 बार टेल आ रहे हैं, लास्ट में 3 times टेल। सो लाइक दिस यू हैव टू कंसिडर ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस। ओके, इसका एक फॉर्मूला ही है, ओके, 2n इनको, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी अच्छी तो ये सारे रिजल्ट आपको क्विकली समझ में आ जाएंगे। सो इफ यू टॉस अ कॉइन से n टाइम्स, if you toss any coin say n times, then the number of elements in the sample space are 2 raised to n. So here if you have to toss this coin 3 times, therefore 2 raised to 3 which are 8. तो कैसे भी करके यहाँ पे 8 आउटकम्स आने ही चाहिए। So this is the in general result for tossing a coin. Okay, if you toss any coin say n times, then the number of outcomes is 2 raised to n, that is 2 raised to 3 which is 8. Okay, now next, now first question, so question is like this: find a probability. Okay, find a probability that at least 2 heads appear. Okay, हाँ, तो at least 2 head आपको चाहिए, तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे 0 सॉरी at least 2 head, हाँ, तो यहाँ पे all 3 are head है ना, all 3 are head। यहाँ पे सेकंड केस में there are 2 head, यहाँ पे 1 head, तो एक ही ऐसा आउटकम है ना जिसमें हेड है ही नहीं, बट आपको क्या चाहिए, मोर देन 2 मतलब ये है ना। सो जस्ट कंसिडर दिस आउटकम्स। So in these outcomes you can find at least 2 head. Okay, 2 से ज़्यादा हेड आ रहे हैं, 2 है ना, इन सब में 2 है और लास्ट में 3 हेड आ रहे हैं। So the number of elements in that event are 4. Okay, so it is trivial because you already have the collection of sample space, and therefore the probability of getting at least 2 heads is number of elements in that event upon number of elements in the sample space, and which are 1 by 2. Okay. एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस प्रोबेबिलिटी। ये बेसिक चल रहा है अभी भी, ओके, और आपको मैंने पहले क्लियर किया कि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी का आपको एक आई थिंक एक चैप्टर ही था 11th-12th में, ओके, तो आपको पता है वो कितना लेंदी है, ओके, और वो टॉपिक हमें अभी एज एक सब टॉपिक में कंसिडर करना। तो इस पूरे चैप्टर में एक प्रोबेबिलिटी प्लेन जो प्रोबेबिलिटी वो एक सब टॉपिक है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है, ओके, उसमें देयर आर अगेन 3 डिफरेंट टॉपिक्स। तो इसलिए आपको एक मतलब क्विक वे में प्रोबेबिलिटी को लर्न करना है, ओके, इसलिए ज़्यादा कुछ इन डिटेल में तो हम नहीं जा सकते, जो रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहा और जितना ले रहा हूँ आई थिंक दिस इज इनफ एज फार एज दिस प्रोबेबिलिटी इज कंसर्न। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, फ्रॉम 20 टिकट्स, ओके, मार्क 1 to 20, so the sample space is this 20 tickets. 1 ticket is drawn at random. Find the probability that it is marked with a multiple of 3 or 5. So it is a trivial question. Okay. तो sample space में there are 20 tickets. आपको करना क्या है, you have to define an event, है ना, define an event A, okay, such that the ticket is marked with the multiple of 3 or 5. So here you have to consider the multiple of 3 also and the multiple of 5 also. और का मीनिंग क्या होता है, यूनियन। अभी आपको इमीडिएटली समझ में आने वाला। Now you have to learn the algebra of probability. So you will understand what is meant by union, what is meant by intersection, और उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। और यहाँ पे एक्चुअली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट ज़्यादा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट का रोल ज़्यादा आता है। सो you must have the clear understanding between union and intersection. So और आता है तो उस केस में union consider करना है. It means you have to consider multiples of 3 also, which are 3, 6, 9, 12, okay, 15, 18, and then multiple of 5 also, which are 5, 10 and 20. 15 already आपने consider किया. So if you combine all this, so total there are 9 elements in your event. Therefore your probability is 9 by 20. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी यू नीड दिस क्वेश्चंस. ओके, नाउ दिस आर दी थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, और आई कैन से अलजेब्रा ऑन प्रोबेबिलिटी. जैसे आप रियल में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, वैसे प्रोबेबिलिटी में भी आप प्रोबेबिलिटी यू कैन अप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑन ए यूनियन, सेट ऑफ इंटरसेक्शन एंड सो ऑन. ठीक है, सो द फर्स्ट रिजल्ट इज लाइक दिस. If A and B are any two events, है ना, अभी आपको events clearly पता है. Okay, simply the subset of your sample space from a finite sample space, then the probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, है ना.
ये आप मतलब ये फॉर्मूलेज आपको बेसिकली वेन, दिस इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। ओके, तो वेन डायग्राम से भी आपको ये समझ में आ जाएंगे, या आपको ये फॉर्मूले याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, है ना। ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी में ए भी आता है, करेक्ट, ए भी आने वाला है, और ए यूनियन बी में बी भी आता है, तो दिस इज माई बी। ठीक है, सो दिस आई कैन राइट इट एज आई जस्ट कंसिडर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, तो ए मैंने कंसिडर किया है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो मैंने बी कंसिडर किया है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, ए और बी में दोनों केस में कॉमन पार्ट आ रहा है, मतलब ए का ये जो कॉमन पार्ट ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना, ए में भी था, ये जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, ये जो पार्ट था ये पार्ट ए में भी था और बी में भी था, तो आपको दोनों में से एक ही केस में कंसिडर करना है। अगर ए में कंसिडर किया तो बी में कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने बी में कंसिडर किया तो ए में कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन में एक बार सबट्रैक्ट करता हूँ, सो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सो दैट यू विल गेट दिस होल यूनियन स्पेस। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन 2 बार रिपीट हो रहा था, है ना, ए में भी आ रहा था और ए इंटरसेक्शन बी का जो पार्ट था, दिस ए इंटरसेक्शन बी पार्ट रिपीटेड इन ए आल्सो, इसमें भी रिपीट हो रहा था और इसमें भी रिपीट हो रहा था, इसलिए एक बार तो सबट्रैक्ट करने हैं, अदरवाइज फिर वैल्यू आपकी मैच नहीं होगी। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। Okay, now if these two events are mutually exclusive का मीनिंग क्या होता है, there is no common points between these two events, उन दोनों में कोई common points नहीं है। In that case you can write probability of A union B as probability of A plus probability of B। आपको डायग्राम से भी समझ में आ रहा है, अगर common points है तो ये सब्ट्रैक्शन का पार्ट आता है A इंटरसेक्शन B का, क्योंकि ये इंटरसेक्शन B का पार्ट 2 बार रिपीट होता है। अगर कॉमन पॉइंट है ही नहीं तो इंटरसेक्शन का पार्ट ही नहीं आएगा, तो वो सब्ट्रैक्ट और ऐड करने की जरूरत भी नहीं होगी। सो डायरेक्टली यू कैन कंसीडर दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अभी ये फॉर्मूलेस अप्लाई करने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, है ना। तो वो अगर अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियरली आती है तो ये फॉर्मूलेस आप अच्छे से यूज कर सकते हो। ओके, या ये भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मुझे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कंसिडर करना है, या यहाँ पे मुझे ए इंटरसेक्शन बी कंसिडर करना है। ओके, यूनियन में क्या होता है, तो इसलिए आई क्विकली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। मुझे पता है, सबको ही पता है ये पार्ट, ठीक है, बट फिर भी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा चाहिए, तब जाके आपको आगे के प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगे। यूनियन का मीनिंग क्या होता है, ओके, जो भी एक्स आप कैलकुलेट करें, या जिस केस में भी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, ओके, सो वो जो एक्स होता है, दैट एक्स लाइज, सो दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आल्सो, that x belongs to b also, that x belongs to a, or that x belongs to b, or that x belongs to both a and b। मतलब यूनियन में क्या होता है, अगर वो एलिमेंट a में भी आता है दैट इज ऑल्सो ओके, वो एलिमेंट अगर b में भी आता है दैट इज ऑल्सो ओके, या वो एलिमेंट a यूनियन b में भी आता है दैट इज ऑल्सो दैट नंबर्स ऑल्सो कैन कंसिडर। ओके, तो यूनियन में क्या होता है, a यूनियन b में आप एलिमेंट a में भी ले सकते हो, ओके, आप एलिमेंट b में भी ले सकते हो, या आप एलिमेंट उन दोनों में भी ले सकते हो। So A union B consider those elements. Now I can define the A union B. So A union B consider those elements which are lies in A, or lies in B, or lies in A and B. But intersection में क्या होता है, okay, you have to consider the common elements between A and B. A and B में जो common part आ रहा है आपको उतना ही consider करना है। So I hope क्या आगे मुझे एग्जाम्पल में ये पार्ट चाहिए, यूनियन और इंटरसेक्शन, उस टाइम पे आप ही खुद इमेजिन करो कि यहाँ पे मुझे यूनियन लेना है या इंटरसेक्शन लेना है। ओके, एंड नाउ यू कैन एक्सटेंड दिस डेफिनेशन ऑफ यूनियन इफ ऑल दोज एन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर वो सारे एन इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ जाते हैं, इन दैट केस यू कैन राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 एंड सो ऑन। Okay, now next is so this is my say x, है ना, होल स्पेस, यहाँ पे कहीं पे आपका a आ रहा है, दिस इज माय a सेट। तो क्वेश्चन क्या है, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, है ना। सो दिस a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली, सो ओके, आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट। सो दिस इज द यूनियन। तो यूनियन की आपकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ a यूनियन b, अभी आपने प्रीवियसली लर्न किया था। ओके, दोनों के एडिशन माइनस देयर इंटरसेक्शन, दोनों के एडिशन माइनस देयर इंटरसेक्शन। ओके, बट आपको पता है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कभी भी कॉमन पॉइंट्स नहीं आते। ए अगर ये आता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट आउटसाइड, मतलब अदर देन ए आता है, तो इट इज क्लियर दैट देयर इज नो कॉमन पॉइंट्स बिटवीन ए एंड ए इंटरसेक्शन। अगर उनमें पॉइंट्स है ही नहीं, है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली क्या आ गई, जीरो।
So A union A complement actually become probability of A plus probability of A complement, है ना. आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना. अगर उन दोनों में कोई कहीं पे भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है तो आप डायरेक्टली उनकी प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. सो हियर आल्सो दिस टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि उन दोनों में कहीं पे भी कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट ही है. उन दोनों में कहीं पे भी कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट. एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट. बट सो आपको पता है कि A एंड A कॉम्प्लीमेंट, है ना, अगर इन दोनों को मैं कंसिडर करता हूं, दैट गिव्स यू दी होल, मतलब दैट गिव्स यू दी होल स्पेस. जो आपका गिवन स्पेस है या होल म्यूचुअल होल सैंपल स्पेस, वो बेटर वर्ड होगा. अगर दिस इज माय एस, ओके, आपको मैं सेट थ्योरी से एक्सप्लेन करता हूँ. इफ दिस इज माय एस, ओके, आई जस्ट कंसिडर वन सबसेट ऑफ दिस एस दैट बिकम माय इवेंट, है ना. या अगर मैं ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ओके, इसको मैं अगर एस से डिनोट करता तो एक मुझे सबसेट लेना है एस का, विच इज से ए, ठीक है ना. तो आप कंसिडर करो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आता है ना. तो ये मतलब ये मिडल का पार्ट और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब अदर दैन ए, इन दोनों का सो यूनियन ऑफ दिस टू सेट एक्चुअली गिव्स यू सैंपल स्पेस. और इन जनरल द ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज गिव्स यू द होल सैंपल स्पेस. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस. बट यस आपका टोटल सैंपल स्पेस है, होल स्पेस है, ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो हाईएस्ट आएगी, है ना. आप देखो, आपको पता है ना कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. बट अगर ए सेट ही मेरा सैंपल स्पेस हो रहा है, इफ माई ए सेट इज इटसेल्फ इज अ सैंपल स्पेस, तो आपका आंसर क्या होगा 1. या सिंपली अगर इवेंट जो मेरा ए इवेंट है उसकी वैल्यू अगर सैंपल स्पेस से मैच हो रही है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज एक्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, देन दैट इन दैट केस योर प्रोबेबिलिटी इज 1. तो वे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट दिस इज योर सैंपल स्पेस. तो उनमें जितने एलिमेंट्स आएंगे, ओके, दैट एलिमेंट्स आर एक्जैक्टली सिमिलर टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज 1. ठीक है. So probability of A plus A complement is equal to 1, and from this you can define now the probability of A complement, which is 1 minus probability of A. तो previous question में भी आप ये पार्ट यूज कर सकते थे, बट उस टाइम पे शायद मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इसलिए वो स्किप किया. So now onwards you can apply the probability of A complement also, which is 1 minus probability of A. ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको यूज करना है. ओके, सो दिस विल मूव फॉरवर्ड. ओके. And now there is one result which is depend on intersection. Okay, so probability of A intersection B is equal to probability of A multiplied by probability of B or A. Okay, so or how you can read this B by A. Okay, so where this B by A, it means the occurrence of events subject to the condition that A is already occurred. Okay, तो जनरली ये डिपेंडेंट के केस में होता है. इफ टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट, मतलब ए इवेंट आपने लिया है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, है ना, और बी इवेंट आपने लिया है, अगर इन दोनों में कहीं पे कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या आता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन. ओके, इन दैट केस, ओके, ये रिजल्ट पहले आप देखो. इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर उन दोनों में कहीं पे भी कुछ भी रिलेशन नहीं है, ओके, इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, दैट गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. बट अगर वो डिपेंडेंट है, ओके, तो डिपेंडेंट के केस में जनरली ये डेफिनेशन आती है. तो डिपेंडेंट के केस में इफ आई कंसिडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देन मल्टीप्लाई बाय, अभी जो आपका बी इवेंट है वो ए पे डिपेंड है, तो जब तक आपका ए इवेंट कंप्लीट नहीं होता है, जब तक आपका ए इवेंट कंप्लीट नहीं होता है, यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इवेंट. ओके, सो देयरफॉर दिस सेकंड गिव्स यू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी. ओके, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे रीड कर रहा हूं आप देखो. सो दिस गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन द इवेंट ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड. मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इवेंट ए, जो भी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाले हो इवेंट बी की, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए. या सिंपली जस्ट रिमेंबर दिस नोटेशन बी बाय ए. इसका मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए में एक्चुअली आपको बी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. आप एक्चुअली यहाँ पे बी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, बट प्रोवाइडेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोवाइडेड इवेंट ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब इवेंट ए आपका पहले कंप्लीट होना चाहिए. अभी आप देखो, अगर
अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब ए इवेंट और बी इवेंट में कोई रिलेशन नहीं है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर बी इवेंट डिपेंड ही नहीं था, therefore the probability of b by is always equal to probability of b. But अगर b event, if in a case where event b is depend on a, then in that case you have to calculate carefully the probability of b. Okay. हाँ, अभी इंडिपेंडेंट का मीनिंग आपको पता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट एक एग्जाम्पल में लेता हूँ, टॉसिंग अ कॉइन से 2 टाइम्स, है ना. तो उसमें जब आप फर्स्ट टाइम टॉस कर रहे हो वी कॉल इट एज इवेंट ए, जब आप सेकंड टाइम टॉस कर रहे हो वी कॉल इट एज इवेंट बी. ओके, प्लीज फोकस केयरफुली, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बोला कि आपको एक पूरा टॉपिक था 11th-12th में और यहाँ पे मुझे क्विकली कवर करना है प्रोबेबिलिटी का पार्ट, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. एंड इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं जस्ट लेट मी नो. ओके, अभी मुझे क्या एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए ना आपके पास नंबर ऑफ एग्जाम्पल चाहिए. ओके, अगर आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल है ना अच्छे से, या कोई भी एक एग्जाम्पल आप अच्छे से फिट करके रखो दिमाग में, फिर ये सारी चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाएगी. ओके, अभी मैं पहले आपको क्या एक्सप्लेन करता हूँ कि इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे रहते हैं जनरली. ओके, अभी एग्जांपल मैंने क्या लिया, आई हैव टू टॉस अ कॉइन, है ना, टॉस अ कॉइन, तो हमेशा यही याद रखो. ओके, 2 टाइम्स. तो जब आप फर्स्ट टाइम टॉस करते हो वी कॉल दैट इवेंट एज ए, है ना. तो जब आप फर्स्ट टाइम टॉस करते हो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो से ए इवेंट मतलब हेड के लिए सारा कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, सो कंसिडर दैट आई कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, गेटिंग हेड. हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2. करेक्ट. एक और बार आपको टॉस करना है, मतलब वो होगा आपका इवेंट बी. जब आप सेकंड टाइम पे टॉस करते हो, अभी आप देखो फर्स्ट टाइम पे टॉस किया था आइदर यू विल गेट हेड और आइदर यू विल गेट टेल, इसलिए प्रोबेबिलिटी आपकी आती है 1/2. बट जब आप सेकंड टाइम पे भी टॉस करते हो फिर से आपके पास वही चॉइसेस है, आइदर यू विल गेट हेड और आइदर यू विल गेट टेल. तो यहाँ पे इवेंट ए को कंप्लीट करने के बाद ही इवेंट स्टार्ट करना है, ऐसी कोई कंडीशन है क्या? नहीं है ना. मतलब ये दोनों इवेंट आप अलग अलग भी कर सकते हो, मतलब 2 स्टूडेंट आके दोनों स्टूडेंट एक टाइम पे टॉस कर सकते हो, दोनों स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2. सो दिस 2 इवेंट्स आर टोटली इंडिपेंडेंट. ऐसी कोई कंडीशन है कि इवेंट ए को पहले कंप्लीट होने दो उसके बाद ही इवेंट बी करना है, या इवेंट बी को पहले कंप्लीट होने दो उसके बाद ही इवेंट ए करना है. सो दिस सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट इवेंट. ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे आपको डिपेंडेंट का मीनिंग समझ में आएगा. ओके, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है. ओके, तो यहाँ पे कुछ वर्डिंग में मैंने दिया नहीं दिया. ओके, क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली आपको प्रोबेबिलिटी किस केस में कैलकुलेट करनी है. सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 मार्बल्स फ्रॉम दिस सेट. सो दिस इज योर सैंपल स्पेस. ओके, क्वेश्चन क्या था, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 मार्बल्स फ्रॉम दिस सैंपल स्पेस. अभी सैंपल स्पेस में क्या है, सैंपल स्पेस में देयर आर 3 रेड मार्बल्स एंड 2 ब्लू मार्बल्स, और आपको करना है क्या है, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 मार्बल्स. ओके, तो 2 मार्बल्स ड्रॉ करने के लिए पहले एक तो मार्बल ड्रॉ, मतलब फर्स्ट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 मार्बल, फिर एक और बार आप ड्रॉ करो, दैट गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 मार्बल्स. आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट आई विल एक्सप्लेन द डिपेंडेंट इवेंट. मतलब इनमें प्रीवियस केस में भी मैंने 2 बार कॉइन को टॉस किया था, आपको वो समझ में आ रहा है कि दिस 2 आर इंडिपेंडेंट. अब इस केस में भी मैं 2 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करने वाला हूँ, सेम एक्सपेरिमेंट, बट आपको समझ में आएगा दिस 2 एक्सपेरिमेंट्स आर डिपेंडेंट, है ना. ओके, सो इन फर्स्ट केस, so here I just calculate probability of getting 1 marble. तो A event क्या है, probability of getting 1 marble. Okay, so टोटल कितने मार्बल से आपके पास 5, तो सैंपल स्पेस में नीचे क्या आने वाला है 5, ये आपका सैंपल स्पेस है. ओके, और आपको क्या है, हियर यू हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 मार्बल, बट टोटल कितने मार्बल से, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ब्लू मार्बल, बट यहाँ पे टोटल कितने मार्बल से, सो टोटल देयर आर 2 ब्लू मार्बल्स, इसलिए आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/5. Okay, so this 2/5 is actually probability of getting 1 marble. Okay, now again अभी आपको सेकंड एक और बार आपको मार्बल को ड्रॉ करना है. क्या मार्बल को यू वांट दैट मार्बल फ्रॉम द गिवन स्पेस, बट जब आप सेकंड टाइम, मतलब जब आप बी पे जाते हो, बी क्या है, प्रोबेबिलिटी, सॉरी बी इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड मार्बल, सेकंड ब्लू मार्बल, है ना. तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट केस में आपने एक मार्बल को ड्रॉ किया है. ओके, सेकंड केस में भी आपको एक और बार ब्लू मार्बल को ड्रॉ करना है, बट अभी सेकंड केस में, तो जब भी आप बी इवेंट पे जाते हो, आप देखो आपका सैंपल स्पेस टोटली चेंज हो रहा है ना. अभी इस केस में नाउ वी डोंट हैव दी 5 एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, नाउ हियर यू विल हैव ओनली 4
मार्बल्स इन योर सैंपल स्पेस, और उसमें भी क्या है, आपको चाहिए क्या, आपको ब्लू मार्बल को ही ड्रॉ करना है, बट अभी ब्लू मार्बल कितने उस सेट में, एक ही है। तो जब आप सेकंड टाइम पे, जब आप सेकंड केस में ब्लू मार्बल को ड्रॉ करते हो, इन दैट केस योर प्रोबेबिलिटी इज 1/4। ओके, और आप देखो टोटली चेंज हो रहा है। सो दिस बी इवेंट टोटली डिपेंड ऑन ए, क्योंकि जब तक आपका ए इवेंट कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको ना सैंपल स्पेस समझ में आएगा, ओके, ना आपको इवेंट में कितने नंबर्स आ रहे हैं या बी इवेंट में कितने नंबर से वो भी नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका मीनिंग क्या है, इसको मैथमेटिकल वे से आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, बी बाय ए का, इवेंट ए को पहले कंप्लीट होने दो और फिर उसके बाद बी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। तो बी इवेंट क्या था, कैलकुलेट दी ड्रॉ दी अनदर मार्बल, सेकंड मार्बल। तो जब आप सेकंड टाइम पे मार्बल ड्रॉ करने की कोशिश करते हो उस टाइम पे एक ही ब्लू मार्बल थी, तो 1, और टोटल सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स, सो दिस इज गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड मार्बल फ्रॉम दैट सेम सेट। ओके, एंड नाउ अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो, ए और बी बाय ए का, या सिंपली ए और बी का, दैट गिव्स यू 1/10। और ये बेसिकली क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली क्या होता है, ए एंड बी, दैट इज इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन बी एक्चुअली मतलब ए इवेंट क्या था, सिंपली ए और बी को मैंने डिफाइन कैसे किया था, ओके, ड्रॉइंग अ मार्बल, है ना, ड्रॉइंग गेटिंग अ 1 मार्बल फ्रॉम दी गिवन सैंपल स्पेस। जब आप ए और बी को कंबाइन करते हो, है ना, तो उस टाइम पे आपके पास टोटल कितने मार्बल्स आने वाले, यू विल गेट 2 ब्लू मार्बल्स, क्योंकि ए इवेंट क्या था, ए इवेंट आपका क्या था, गेटिंग 1 ब्लू मार्बल, और बी इवेंट भी क्या था, गेटिंग 1 ब्लू मार्बल। तो अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, गेटिंग 2 ब्लू मार्बल। तो वही तो आपको चाहिए था। सो ए इंटरसेक्शन बी जनरली क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ओके, तो इसलिए इसका प्रूफ मैंने सेट थ्योरी से नहीं लिया क्योंकि ज़्यादा आपको अच्छे से याद होगा फ्रॉम द एग्जाम्पल। सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। नाउ दिस बी बाय ए इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो बी बाय का मीनिंग क्या होता है, सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट प्रोवाइडेड इवेंट ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो इसमें कुछ रिमार्क्स है, क्विकली आई कवर दिस एंड देन वी स्टॉप। Okay, so if B is containing A, in that case your probability of A intersection B is this. तो जो लार्जर सेट आता है वो आप उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पहले कंसिडर करनी है, ओके, और फिर एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर प्रोवाइडेड योर फर्स्ट इवेंट इज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो जो लार्जर सेट है वो पहले मल्टीप्लाई करो। A इंटरसेक्शन B में लार्जर सेट B है तो पहले बाहर B आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये रिमार्क मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, इफ दिस टू आर इंडिपेंडेंट तो ए इवेंट कंप्लीट होने के लिए आपको वेट ही नहीं करना है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमेशा ये 2 एक्सपेरिमेंट आप याद रखो, टॉसिंग अ कॉइन इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना, ड्रॉइंग अ मार्बल, ड्रॉइंग अ कार्ड, ओके, दिस आर द डिपेंडेंट इवेंट। ओके, एंड नाउ दिस इज द लास्ट थ्योरम, बेस थ्योरम, ओके, बट इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। जो रिजल्ट है जो अभी हमने डिफाइन किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ठीक है, यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट। ये ज़्यादा कुछ इन डिटेल में नहीं ले रहा हूँ बिकॉज विच इज़ नॉट देयर इन सिलेबस, ओके, बट आपको था ये 11th-12th में, इसका प्रूफ भी आपको था मतलब उस टाइम पे। ठीक है, सो एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न वी आर will not look for this theorem, but this is a famous theorem in probability। ठीक है, और उसमें कुछ है नहीं, ओके, सिंपल डेरिवेशन है। ओके, ये जो अभी हमने रिजल्ट डिफाइन किया था वहाँ से ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए की वैल्यू आ रही है, उसमें बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पुट करो विच इज अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन बी रिटन एज दिस, ए सेट कैन बी रिटन एज, ये आपको डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा। ए सेट को आप कैसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपको जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दिस यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई रिप्लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय दिस वैल्यू एंड देन दैट गिव्स यू द बेस फार्मूला। ठीक है, बट इसका कुछ यूज़ नहीं है। ओके, एप्लीकेशंस, इसकी जो एप्लीकेशन है वो सिलेबस में नहीं है। सो मैंने जस्ट आपको पीपीटी में दिया है ये पार्ट, बट एज फार एज आवर एग्जाम्पल्स आर कंसर्न वी जस्ट स्टिक विद दिस फार्मूला। ओके, एंड नाउ देयर आर सम एग्जाम्पल्स बट आई थिंक आई नीड टू स्टॉप हियर।